Welcome to Engineering Math Studio by Steps Academy. I am Professor Shukla. Welcomes you in new Engineering Math 3 series. दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट? नाउ इन दिस लेक्चर, अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल. जब भी हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, पी आई इज कॉल्ड एज पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल. How to find that particular integral? How many methods are there for to finding the particular integral? Okay. Now to find the particular integral by using three methods. First, so हम लोग लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस. हाउ टू फाइंड दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. How many cases are there to find the complementary function? Now the second topic is what? Particular integral. So my equation is what? F of dy equal to f of x. F of dy equal to f of x. Now to find particular integral, it is called as pi. Okay. So by using this equation, f of dy equal to f of x. So here y equal to 1 upon f of d into f of x. So this y denotes as a yp. So it gives particular integral. It gives particular integral. Okay. Now, so for this particular integral, how many different methods are there to find the particular integral? So to find particular integral by using three methods. First method is general method. Second method is shortcut method. And third method is variation of parameter method. It is called as BOP method, right? So to find PI by using these three methods, general method, shortcut method, and a variation of parameter method, right? Now, first we start shortcut method. First we start shortcut method. Now, to find PI by using shortcut method. अब शॉर्टकट मेथड से हम लोग जैसे पी आई फाइंड करेंगे, here different methods are there, different types are there. So my first type number 1, in shortcut method to find pi by using type number 1. Okay, so here type number 1 or case number 1 upon f of d into e raised to x, 1 upon f of d into e raised to ax. So here we can put 1 upon f of a e raised to x. So here f of a is not equal to 0. This condition f of a is not equal to 0. If f of a equal to 0, that is case of failure. That is case of failure. अगर ये टर्म f of a की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये आपकी टर्म है केस ऑफ फेलियर. अगर केस ऑफ फेलियर है तो आपको क्या करना है, x into 1 upon derivative of that previous term. It means your f dash of a. Again same thing, f dash of a is not equal to 0. If suppose again this value is 0, again you put x into f double dash of a equal to, right, like this. Okay, it means what, you can put
d equal to a. So your first type. It means what? आपको f of x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आनी चाहिए? e रेस टू ax फॉर्म. अगर आपकी f of x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ e रेस टू ax फॉर्म है, दैट इज योर टाइप नंबर 1 और केस नंबर 1 in shortcut method. That time you put the value of d equal to a. Clear? Now friends, टाइप नंबर 1 देखा हम लोगों ने. क्या था टाइप नंबर 1? 1 upon f of d into e raised to ax. It means what? You can put the value of d equal to a. Now additional results in type number 1. Additional results in type number 1. Okay, so this value again, first 1 upon f of d into k. जब भी इंस्टेड ऑफ ई रेस टू एक्स अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो कांस्टेंट वैल्यू आपको आगे लेना है और लिखना है 1 अपॉन डी इंटू 1. क्लियर? नाउ इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन पुट एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू 0x. ओके, तो हम लोगों ने टाइप नंबर 1 में क्या देखा? ई रेस टू एक्स फॉर्म अगर है तो पुट डी इक्वल टू ए. तो हमें यहाँ d इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 0. सो पुट d इक्वल टू व्हाट? 0. इट मीन्स व्हाट? जब भी आपको कांस्टेंट वैल्यू आती है 1 अपॉन f ऑफ 0 इनटू दिस वैल्यू इज 1. क्लियर? एडिशनल रिजल्ट में और एक रिजल्ट है कांस्टेंट वाला. जब भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आती है, इन दैट केस यू पुट इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट यू कैन पुट d इक्वल टू व्हाट? 0. Clear? d equal to 0. Clear? Additional results number 1. Now again second, additional result 2. Additional result 2. If you put if 1 upon f of d into a raised to x, 1 upon f of d into a raised to x. जब भी आपको मिलता है a raised to ax फॉर्म, that time you put d equal to log of a. That time you put value of d equal to log of a. So additional result में first type है constant k वाला, second type है a raised to ax फॉर्म. For example, d square plus 2d plus 1y इक्वल टू 3 raised to x. राइट? अब यहाँ पे क्या है? a raised to x फॉर्म. जब भी हम pi निकालेंगे, pi yp इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन f of d into f of x. So here you put 1 upon t square plus 2d plus 1 into what? 3 raised to x. जब भी इन टर्म्स ऑफ a raised to x होगा, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू log a. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3. तो यू पुट d इक्वल टू log 3. d इक्वल टू log 3. ओके, सो देयरफॉर योर yp इक्वल टू क्या आएगा सॉल्यूशन? 1 अपॉन इंस्टेड ऑफ d हमें क्या पुट करना है? log 3. सो log 3 स्क्वायर plus 2 log 3 plus 1 into 3 raised to x. This is your yp. Clear? It means what? Additional results type number 1 के additional results में ये दो types. अगर constant term है, you can put value of d equal to 0. अगर a raised to x form है, तो you can put d equal to log a. Clear? Now अब एडिशनल रिजल्ट्स में टाइप नंबर 1 में हमारा एडिशनल रिजल्ट 3 है 1 अपॉन d माइनस a रेज़ टू द पावर r e रेज़ टू ax. 1 upon d minus a raised to the power r e raised to ax. That time we can put x raised to r upon r factorial into e raised to ax. अब ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 1 अपॉन डी माइनस 2 क्यूब ई रेज़ टू 2x
इस फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको e⁻x फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू a। यहाँ पे a की वैल्यू कौन सी है, 2। अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 माइनस 2 0। अब इस कंडीशन में क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई आपकी a की वैल्यू, ये हो गई आपकी r की वैल्यू। ओके, इट मीन्स व्हाट, ए यहाँ पे जो दिख रहा है ए और ए दोनों ए सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ए सेम है तो आपको सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इज टू ax। इट मीन्स व्हाट, x रेज टू द पावर r कितना हमारा 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल e रेज टू व्हाट, x। सो हमारा आंसर क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स व्हाट, 3 into 2 into 1, दैट वैल्यू इज 6 e raised to 2x। ये हमारा फॉर्मूला। सो दैट इज योर टाइप नंबर 3 इन एडिशनल रिजल्ट्स। टाइप नंबर 1 जो हमारा e raised to ax फॉर्म में था, तो हमारा इन शॉर्ट क्या हो गया, टाइप 1 में हमें क्या क्या मिलेगा, टाइप 1 में f ऑफ x की वैल्यू जो है, f ऑफ x की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ e raised to ax मिलेगी और कांस्टेंट मिलेगी और e raised to ax मिलेगी। ये तीन टाइप अगर हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में दिख रहे हैं, दैट इज योर टाइप नंबर 1 शॉर्टकट मेथड, टाइप नंबर 1। सो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल व्हाट, e raised to x फॉर्म और कांस्टेंट फॉर्म और e raised to x फॉर्म, राइट। चलो दोस्तों, नाउ एग्जांपल्स ऑन टाइप नंबर 1। एग्जांपल्स ऑन टाइप नंबर 1। सो माय फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, d स्क्वायर minus 5d plus 6 into y। d square minus 5d plus 6 into y, 3 e raised to 5x। अगर आपको मैंने वही बताया कि अगर f of x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ e raised to x है, दैट इज योर टाइप नंबर 1। f of x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ e raised to ax फॉर्म में है, तो टाइप नंबर 1। सो माय फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, पहली स्टेप, auxiliary equation f of d equal to what, 0। so this value d square minus 5d plus 6 equal to 0। सिंपल टर्म है, तो पहली टर्म हमारी क्या है, इसके हमें रूट्स निकालना है, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके रूट्स कैसे आएंगे, सो d इक्वल टू व्हाट, ओके, -2 and -3, इट मीन्स व्हाट, d इक्वल टू 2 and 3, राइट। ये हो गया कैलसी से। हम लोगों ने क्या किया था, 6 के ऐसे निकालो, जो कांस्टेंट टर्म है 6, इसके ऐसे दो रूट्स निकालो जिनकी एडिशन मिडिल टर्म आनी चाहिए। इट मींस व्हाट, -2 and -3, एंड -2 - 3 इज -5। सो माय रूट्स इज d इक्वल टू क्या हो गया, 2 and 3। सो योर रूट्स आर रियल एंड नॉन रिपीटेड। Roots are real and non-repeated. So my complementary function is yc equal to क्या होगा, c1 e raised to 2x, c2 e raised to 3x, c1 e raised to 2x and c2 e raised to 3x। ये मेरी फर्स्ट स्टेप है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, हर प्रॉब्लम में आपको पहली स्टेप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। नाउ माय सेकंड स्टेप इज व्हाट, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिससे हम डिनोट करते हैं yp, राइट। सो दैट yp इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू वॉट, f ऑफ x। ये हमारा फॉर्मूला yp का। सो अब जब भी हम लोग yp निकालेंगे, 1 अपॉन f ऑफ d की टर्म, मतलब ये हमारी पहली टर्म जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू f ऑफ x, राइट साइड में जो टर्म आएगी वो 3 e raised to 5x, राइट। ये हमारा टाइप हो गया e raised to ax फॉर्म। सो दैट टाइम यू पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5। सो यू पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, yp इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर मीन्स व्हाट, हियर 5 स्क्वायर माइनस 5 into 5 प्लस 6 into 3 e raised to
5x. So yp equal to 1 upon 25 minus 25 plus 6, 3 e raised to 5x. Okay, so 25 get cancel. So yp equal to 3 by 6 e raised to 5x. It means what? yp equal to yp equal to 1 by 2 e raised to 5x. क्लियर, ये हो गया आपकी टर्म yp की. हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. यहाँ पे हम लोग ग्रहण करते हैं y इक्वल टू yc प्लस yp. सो y इक्वल टू हमारा जो भी yc मिला हुआ है यहाँ पे c1 इज टू 2x प्लस c2 इज टू 3x प्लस क्या टर्म आएगी 1 by 2 इज टू 5x. यह जनरल सॉल्यूशन c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 3x प्लस 1 by 2 e raised to 5x. ये हो गया हमारा टोटल जनरल सॉल्यूशन. क्लियर, मतलब क्या, जब भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ pi. So addition of these two yc plus yp equal to your general solution. क्लियर, गॉट माय पॉइंट. इट मीन्स व्हाट, हमें क्या देखना है कि राइट साइड में अगर e raised to ax फॉर्म है, राइट साइड में अगर e raised to ax फॉर्म है तो हमें क्या पुट करना है, दिस वैल्यू d इक्वल टू हमें क्या पुट करना है a. ये a की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें वहां पे पुट करना है d इक्वल टू a. क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, नाउ फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू y e raised to minus 3x. राइट, अब हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y इक्वल टू ई रेस टू माइनस 3x. अब हमें पता है राइट साइड में इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू x है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अभी -3. दैट इज योर टाइप नंबर 1. राइट, अब हमारी पहली स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन f ऑफ d इक्वल टू 0. मतलब क्या हो जाएगा, हमारा f ऑफ d जो दिया है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू व्हाट 0. हमें इसके रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग कैलसी और विदाउट कैलसी. तो बाय यूजिंग कैलसी से रूट्स कैसे आएंगे, 3 into 1. सो d इक्वल टू, जैसे कि 3 के हम ऐसे दो रूट निकालेंगे, 3 into 1 दैट इज 3, 3 plus 1 इक्वल टू व्हाट हियर 4. मतलब क्या हो जाएगा, d plus 3 d plus 1 इक्वल टू 0 मीन्स d इक्वल टू -3 - 1. d इक्वल टू -3 - 1. ये हमारे दो रूट्स आ गए, d इक्वल टू -3 - 1. तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड नॉन रिपीटेड. सो माय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज yc इक्वल टू c1 e raised to -3x, c2 e raised to -1x. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इट मीन्स व्हाट, हर एक प्रॉब्लम में क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है. ओके, नाउ तो मेरा सेकंड पार्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे हम लोग बोलते हैं पीआई. सो दैट yp इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू f ऑफ x. 1 अपॉन f ऑफ d इंटू f ऑफ x. अब देखो यहाँ पे yp इक्वल टू 1 अपॉन, हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ d क्या है, वैल्यू d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3. हमें वैल्यू मिली एफ ऑफ एक्स की e raised to -3x. अब हमें पता है कि यहाँ पे टर्म कौन सी है, इन टर्म्स ऑफ e raised to x. और द वैल्यू ऑफ a is -3. सो पुट d इक्वल टू a. सो d इक्वल टू व्हाट -3. क्लियर. सो जनरल yp इक्वल टू, जहां जहां हम लोग को d दिखेगा वहां हमें क्या पुट करना है -3. So d means -3 bracket square 4 into -3 plus 3 e raised to -3x. So therefore 1 upon -3 का square है plus 9, 4 into -3 means -12 plus 3 e raised to -3x. राइट, अब यहाँ पे देखो 9 plus 3 कितना हो रहा है 12, 12 minus
12. So this value is what? 0. हम लोगों ने लिखा था f of a equal to 0. It means what? That is case of failure. So this value is 0. That is called case of failure. अगर केस ऑफ फेलियर है तो हम लोग क्या करते हैं? x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्रीवियस टर्म. इसकी प्रीवियस टर्म कौन सी है? डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3. इस टर्म का हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव. सो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2d, 4d का डेरिवेटिव आएगा 4, कांस्टेंट का 0. तो माय डेरिवेटिव इज 2d प्लस 4 e रेज़ टू माइनस 3x माइनस 3x. क्लियर? नाउ अगेन अभी कितना हो गई, वापस हमें क्या करना है? रेज़ टू माइनस 3x. तो हमें पुट d इक्वल टू माइनस 3, राइट? अगेन वी पुट d इक्वल टू माइनस 3. तो हमारा yp क्या आएगा? x इंटू 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4 e raised to minus 3x. So x into 1 upon minus 6 plus 4 e raised to minus 3x. So मेरी वैल्यू आएगी yp इक्वल टू x अपॉन माइनस 2 e raised to minus 3x. क्लियर? yp इक्वल टू x अपॉन माइनस 2 e raised to minus 3x. So my general solution is yc plus yp, दोनों की एडिशन. क्लियर? गॉट इन माय पॉइंट? ये आपका सेकंड प्रॉब्लम. मतलब क्या होगा? राइट साइड में अगर e टू माइनस 3x आ रहा है तो क्या पुट करना है? पुट d इक्वल टू हमें a पुट करना है. बट हमारी कंडीशन क्या थी? अगर ये वैल्यू अगर 0 आ रही है, हम लोग जब वैल्यू d इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे, ये वैल्यू अगर 0 आती है, इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ फेलियर. अगर केस ऑफ फेलियर है तो हमें क्या पुट करना है? x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द प्रीवियस टर्म. प्रीवियस टर्म कौन सी? इसकी ये टर्म है, इसका डेरिवेटिव निकालना है. अगेन पुट करना है d इक्वल टू a की जो वैल्यू माइनस 3 हम लोग पुट करेंगे. तो क्या होगा? d इक्वल टू माइनस 3 पुट किया तो हमारा आंसर कितना है? yp इक्वल टू x अपॉन माइनस 2 रेज़ टू माइनस 3x. सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? yc प्लस yp. क्लियर? व्हाट वाज सेकंड पॉइंट? समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है. जब भी हमारे पास e रेज़ टू ax टर्म है, हमें पुट करना है d इक्वल टू a. Problem number 3 on type number 1, that is d square minus 6d, d square minus 6d plus 9y equal to 6 e raised to 3x. सेम हमें राइट साइड में दिख रहा है e raised to 3x. मतलब क्या हो गया? e raised to ax form. So my first step is what? ऑक्सिलरी इक्वेशन f of d इक्वल टू 0. हमारे पास f of d की वैल्यू है d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0. और इस 9 के हम ऐसे रूट्स निकालने हैं जिनकी एडिशन होनी चाहिए माइनस 6. हमारे पास कैल्शियम, हम लोग कैल्शियम से सिंपली डायरेक्टली रूट निकाल सकते हैं. तो दैट रूट इज 3. तो रूट कैसे हो गए? रूट्स आर real and repeated. So complementary function is yc equal to, अब यहाँ पे हमारे दो रूट्स है, दोनों रूट्स कैसे? रियल एंड रिपीटेड, राइट? सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2x e raised to 3x. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये अपनी फर्स्ट स्टेप, right? Now second step pi, इससे हम लोग डिनोट करते हैं yp इक्वल टू 1 अपॉन f of d इंटू f of x. क्लियर? अब यहाँ पे yp इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 6 e raised to 3x. क्लियर? हमें पता है यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ e raised to x. हम लोग क्या पुट करेंगे? पुट d इक्वल टू a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? हमें वैल्यू मिली है a की 3. तो जहां जहां हमें d दिखेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे? 3. सो yp इक्वल टू
1/3 माइनस 6 × 3 + 9, 6e⁻3x, राइट। अब देखो 1/वैल्यू कैसे आ रही है, 9 - 18 + 9, ये वैल्यू होगी हमारी 0, जिससे हम लोग बोलते हैं दैट इज केस ऑफ फेल्यूर। हमने लिखा हुआ है अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो दैट इज केस ऑफ फेल्यूर। देन यू पुट वैल्यू ऑफ x into 1/डेरिवेटिव ऑफ प्रीवियस टर्म, तो क्या आएगा वैल्यू 2d - 6 6e⁻3x, राइट। अब इस स्टेप में अगेन हमारे पास डी ए बचा हुआ e⁻3x है, अगेन यू पुट d इक्वल टू वॉट 3, अगेन हम लोग d इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी yp इक्वल टू 1x into 1/2 into 3 - 6 6e⁻3। अगेन देखो यहाँ पे 0, 2 into 3 6, 6 - 6 अगेन 0, अगेन केस ऑफ फेलियर। देखो लास्ट प्रॉब्लम में एक बार केस ऑफ फेलियर था, यहाँ पे 2 बार केस ऑफ फेलियर हो रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे x into अगेन x 1/, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रीवियस टर्म, अब प्रीवियस टर्म कौन सी आएगी 2d - 6, यहाँ पे 2d का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 6e⁻3x, राइट। 2d का डेरिवेटिव आ गया 2 into what 6e⁻3x। अब देखो यहाँ पे 6/2 दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे 6/2 that is 3, so x into x means yp equal to x² into 3e⁻3x। हमारा yp क्या आया 3x² e⁻3x। so जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू yc plus yp, so that y इक्वल टू, अब yc कितना हमारा c1 plus c2x plus 3x² e⁻3x is my solution। क्लियर, मीन्स क्या हो गया कि अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमें 2 बार उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। क्लियर, गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन टाइप नंबर 1। So problem number 4, d minus 1 cube y 3x plus 7/2। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में इंस्टेड ऑफ e⁻x अब क्या आया हुआ है a⁻x एंड कांस्टेंट टर्म, जो हम लोगों ने एडिशनल रिजल्ट में देखी थी a⁻x एंड कांस्टेंट टर्म। तो माय फर्स्ट टर्म सेम ऑक्सिलरी इक्वेशन f of b equal to 0, again d minus 1 cube equal to 0, इसका मतलब क्या हो गया d minus 1 d minus 1 d minus 1 equal to 0, so value of d equal to 1 1 1, roots are right, real and repeated, so complementary function is yc equal to c1 plus c2x c3x² e⁻to what 1x, ये हो गया आपका yc। नाउ सेकंड पॉइंट पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि yp इक्वल टू 1/f of b into what f of x। सो 1/f of b की वैल्यू हमारे पास है d minus 1 ब्रैकेट क्यूब f of x है 3x plus 7/2, राइट। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो हम लोग क्या करेंगे इसे सेपरेट आउट करते हैं, 1/d minus 1 cube 3x plus 1/d minus 1 cube 7/2, राइट। अब हम लोगों ने देखा था जब भी a⁻x फॉर्म होगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे d इक्वल टू log a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है d इक्वल टू log 3, जब भी कांस्टेंट वैल्यू है हम लोग क्या पुट करेंगे पुट d इक्वल टू व्हाट 0,
राइट, डी इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, वाई पी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log 3 माइनस 1 क्यूब 3x प्लस, जहां पे डी है वहां पे क्या पुट करेंगे 0 माइनस 1 क्यूब इंटू 7/2, राइट। अब यहाँ पे देखो वाई पी इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज log 3 माइनस 1 क्यूब 3 x माइनस 1 की मिस हो रही है और माइनस वैल्यू -1 इंटू 7/2, मतलब हमारा वाई पी क्या हो गया 1 अपॉन log 3 माइनस 1 क्यूब इंटू 3x माइनस 7/2। So general solution equal to yc plus yp. So this year y equal to c1 plus c2x plus c3x square e raised to x plus हमारे पास है 1 अपॉन log of 3 minus 1 क्यूब 3 raised to x minus 7/2। ये आएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। मतलब जब भी हमारे पास a raised to the power x या कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो इंस्टेड ऑफ a raised to the x हम लोग क्या करेंगे d इक्वल टू log of a। अब जब भी कांस्टेंट वैल्यू है तो वी कैन पुट d इक्वल टू व्हाट 0, वी कैन पुट d इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू दोस्तों। आज तक हम लोगों ने जो देखा टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 इसकी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, आपको दिमाग में फिट बैठ रहा है, तो हमारा जो स्टूडियो है इंजीनियरिंग मैथ स्टूडियो, हमारे यूट्यूब चैनल को अब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स करो। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है हम लोग जो टीचिंग कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस, जिस ढंग से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि क्या होगा इससे अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग ला सके, हमें मोटिवेशन मिल सके, राइट। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, इतना ही करना है आपको बस। ओके, बाय।